اور ہماری جو فورسز ہیں وہ 308 کا کیلیبر G3 میں استعمال کرتی ہیں، اس کی ایک آف دا پروجیکٹائل. یہ جو ڈائمیٹر ہے نا، اس کو آپ کیلیبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کیلیبرز جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. 223 کو اسی لیے بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ریکوائل کم ہوتا ہے. 223 کے لیول ہے نا، وہ اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں ٹارگٹ پریکٹس میں، اپنی رائفل میں لانگ رینج شوٹنگ کسی حد تک، اور اپنی چھوٹی. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. میرا نام ہے ہارون، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارون گنز اینڈ فوڈ. لائسنس آپ کے پاس ہے، آپ گن بھی خریدنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کنفیوزڈ ہیں کیلیبر کون سا ہونا چاہیے، جس کو آپ لوکل زبان میں یہاں پہ بور کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مختلف جو ساری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے رہنا میرے ساتھ ہے اینڈ آف دا ویڈیو تک. سو لیٹس اسٹارٹ دس ڈسکشن. اچھا، کیلیبرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیلیبر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سمپل ٹرم میں کیلیبر کا جنرلی مطلب ہوتا ہے اپروکسیمیٹ ڈائیمیٹر آف دا پروجیکٹائل. یہ جو ڈائیمیٹر ہے نا، اس کو آپ کیلیبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کیلیبرز جو ہیں وہ میجر ہوتے ہیں انچز میں، کچھ کیلیبرز میجر ہوتے ہیں ملی میٹر میں. اچھا، مثال کے طور پہ اب جیسے یہ آپ 9 mm کا راؤنڈ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 9 ملی میٹر 9 mm کا جو پروجیکٹائل ہے یہ اپروکسیمیٹلی 9 ملی میٹر یعنی mm ہے ڈائی میٹر میں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے 0.22. 0.22 کیلیبر کا جو پروجیکٹائل ہے وہ 0.22 آف این انچ ہے ڈائی میٹر میں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح دس از واٹ کیلیبر ایکچولی مینس. اور سملرلی 308 ابھی میرے پاس نہیں پڑا ہوا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس کا جو پروجیکٹائل ہے وہ 0.308 آف این انچ ہے ڈائی میٹر میں. اسی لیے کچھ کیلیبرز ایکسپریس ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں ڈیسیملز میں، مثال کے طور پہ پوائنٹ آف این انچ، اور کچھ بتاتے جاتے ہیں ملی میٹرز میں یعنی mm میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو کامن کیلیبرز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ استعمال ہونے والے ہیں. وہ ہیں 0.22، یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. 0.22 کے بعد ہے 30 بور، یہ 30 بور کا کیلیبر میرے سامنے پڑا ہوا ہے. اور 9 mm، یہ 9 mm کا پڑا ہوا ہے. اچھا، اب ہم سٹارٹ کریں گے، شروعات کریں گے 22 بور کے ساتھ، جس کو کہ آپ 0.22 لانگ رائفل کہتے ہیں یا 0.22 LR کہتے ہیں. چھوٹا سا راؤنڈ ہے، یہ میرے ہاتھ میں ابھی پکڑا ہوا ہے، اور یہ اس کا باکس پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر میں اس کے بارے میں اس کیلیبر کے اوپر مطلب I'll tell you about this caliber. یہ والا جو کیلیبر ہے نا 22 بور کا، یہ بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے ریکریشنل شوٹنگ کے لیے. ریکریشنل شوٹنگ کا مطلب یہ ہوا آپ نے پلنکنگ کی، آپ نے ٹارگٹ پریکٹس کی، آپ نے کینس شوٹ کیے رینج پہ جا کے، آپ نے بوٹلز شوٹ کی، اپنی ٹارگٹ پریکٹس کو بہتر کیا. ٹارگٹ پریکٹس کیسے بہتر ہوتی ہے؟ اور مطلب آپ گئے، آپ نے نشانہ بازی کی، ٹارگٹ پریکٹس کی پیپر کے اوپر، جس کے اوپر وہ سکور لکھا ہوا ہوتا ہے 5 6 7 8 9 10، وہ آپ نے اس پرٹیکولر راؤنڈ کے ساتھ کیا. اور نئے شوٹرز کو ٹرین کرنے کے لیے بھی یہ والا کیلیبر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 0.22 کا راؤنڈ، چھوٹا سا راؤنڈ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا ریکوائل، جس طرح کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، جھٹکا اس راؤنڈ کا جب آپ اس کو اپنے ویپن کے ساتھ فائر کرتے ہیں وہ بالکل کم ہوتا ہے، بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے شوٹ کرنے کے لیے. اور جو نئے شوٹرز ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہے کہ وہ اپنا فوکس کر سکیں، پراپر جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں نا ان کو فالو کر سکیں اس راؤنڈ کے ساتھ. تو جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے لا انفورسمنٹ کی بھی اسی راؤنڈ کے ساتھ 0.22 LR کے ساتھ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، ایک بڑا کامن غلط فہمی، مسکنسیپشن آپ اس کو کہہ لیں، اس راؤنڈ کے 0.22 کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ 0.22 کا راؤنڈ تو بڑا ننا منا سا ہے، چھوٹا سا ہے، تو یہ صرف بگنرز کے لیے.
ऐसी कोई बात नहीं है। रियलिटी में ये वाला जो राउंड है ना, ये एंजॉय सारे शूटर्स जितना भी उनका एक्सपीरियंस लेवल है ना, वो इसके साथ एंजॉय करते हैं टारगेट प्रैक्टिस में, अपनी राइफल में लॉन्ग रेंज शूटिंग किसी हद तक, और अपनी छोटी जो उनकी पिस्टल होती है उसके साथ प्लिंकिंग के लिए। सो दिस राउंड इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स, जो एक्सपीरियंस शूटर्स हैं वो भी इस राउंड को बखूबी इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में। ओके फ्रेंड्स, अब 22 बोर के बाद हम मूव कर जाते हैं 9mm पे। 9mm जो है वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हैंड गन का कार्ट्रिज है, जो कि ये अभी आप देख रहे हैं। ये मेरे सामने 9mm के कार्ट्रिजेस पड़े हुए हैं। तो मतलब आप पूछेंगे कि भी आप ये वाला कार्ट्रिज सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? तो बेसिकली जितनी भी मॉडर्न फायर आर्म्स हैं आजकल, चाहे वो मॉडर्न हो, इंपोर्टेड हो, लोकल हो, वो चेंबर हुई हुई है 9mm में। इस राउंड के अंदर ये चेंबर हुई हुई है, तो बड़ा अच्छा बैलेंस है। मतलब है कि इसका भी रिकॉइल अगर आप कंपेयर करें दूसरे बड़े कैलिबर्स के साथ, ये कम होता है। एक्यूरेसी इसकी अच्छी है, मैगजीन कैपेसिटी आपको ये एक अच्छा फायर पावर देता है, और इसकी अवेलेबिलिटी, ये वाला एमिनेशन जो है 9mm का आपको बआसानी यहाँ पे, जहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान, यहाँ पे आपको बआसानी ये अवेलेबल हो सकता है, और हो जाता है। इनफैक्ट हो सकता नहीं है, हो जाता है। बनिस्बत इसके जो .22 आपके सामने पड़ा हुआ है, ये आपको बहुत ही लिमिटेड शॉप्स पे मिलेगा। हर शॉप पे ये अवेलेबल नहीं होता, जो कि असलहा के डीलर्स हैं कानूनी। तो 9mm का एक ये एडवांटेज है कि इसकी एमुनिशन की अवेलेबिलिटी बआसानी मतलब ये दस्तयाब होता है। और जितने भी नए हैंड गन ऑनर्स हैं 9mm के, इनको मतलब है कि ये ही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल है, इससे आप आसानी से सीख सकते हैं, और बड़ा इफेक्टिव होता है स्पोर्टिंग और रिक्रिएशनल यूज के लिए। मतलब आप जब अपनी गन रेंज पे जाके इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ज्यादातर 90% मैं तो ये कहूंगा, जितने भी आपके फेलो शूटर्स गन रेंज पे आए होते हैं ना, उनके पास यही वाला कैलिबर होता है 9mm का। ना ही उनके पास 22 बोर होती है, ना ही उनके पास दूसरे कैलिबर्स होते हैं, जिनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो 9mm को रखने का ये फायदा है। द मोस्ट पॉपुलर और मशहूर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैलिबर सारी दुनिया में। ठीक है, तो अब हमने 9mm डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं 23 बोर पे। 23 बोर मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे पाकिस्तान में ये है। मतलब बहुत सारी पिस्टल्स जो हैं चेंबर हुई हुई हैं 30 बोर के अंदर। मतलब है कि जो कि 7.62 mm की फैमिली से आया है ये वाला बोर। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये अभी मैं इसके कार्ट्रिजेस निकाल देता हूँ। ये वाले, ये 30 बोर के कार्ट्रिजेस आपके सामने पड़े हुए हैं, और बहुत ही पॉपुलर है, बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। और मिसाल के तौर पे बड़े डिफरेंट फायर आर्म्स हैं, डिफरेंट डिजाइन्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, और ये इसके अंदर मतलब 30 बोर के अंदर चेंबर हुए हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये बआसानी आपको दस्तयाब है। बहुत सारे जितने भी गनस्मिथ्स हैं हमारे, वो इस बोर को समझते हैं, इस कैलिबर को समझते हैं। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो जाती है, और आपको ये एक लोकल पिस्टल 5 से 10 हजार रुपए में, जो कि एक इंपोर्टेड वेपन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये अपने पास वेपन रख लेते हैं, बशर्ते कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एक अच्छी फैक्ट्री से वो मैन्युफैक्चर हुआ हो। बड़ा ही पावरफुल राउंड है। अगर आप इसको कंपेयर करें 9mm के साथ, तो ये आप देखें साइज में बड़ा है। ठीक है, और इसका डायमीटर और वो सारी चीजें जो है ना मुख्तलिफ हैं कंपेयर टू 9mm। सो दिस वाज द 30 बोर। ओके जी, अब 22 बोर, 30 बोर और 9mm के बाद हम मूव कर जाते हैं 223 पे। 223 का मेरे पास अभी राउंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपना एक डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस कैलिबर के आपको यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक रिकग्नाइज्ड राइफल कैलिबर है सारी दुनिया में, और मॉडर्न स्पोर्टिंग राइफल्स जितनी भी हैं टारगेट शूटिंग के लिए, हंटिंग के लिए, ये वाला राउंड उनमें इस्तेमाल होता है।
तो 2 to 3 को शूटर्स जितने भी हैं जो गन एंथुजियास्ट हैं जो गन्स को पसंद करते हैं, 2 to 3 को इसीलिए भी अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि इसका रिकॉइल कम होता है 2 to 3 के बुलेट का। इसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है, इट्स इजी टू शूट और रिकॉइल मैनेजेबल है। शूटर्स जो हैं वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, फोकस करते हैं अपनी निशानाबाजी को, मार्क्समैनशिप को और जो जितने भी उसकी जरूरियात हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, इस के साथ उसके साथ वो सीखते हैं। तो जितने भी नए राइफल ऑनर्स हैं वो इसको इजी समझते हैं डेवलप करने के लिए बआसानी। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो एतमाद है, उनकी कंसिस्टेंसी जो है इस कैलिबर के साथ वो एक बड़ा अच्छा मतलब है कि परफॉर्म करती है 2 to 3 के साथ। 2 to 3 के बारे में आपको बताया कैलिबर्स, क्योंकि हम डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, हमने कैलिबर्स को अंडरस्टैंड करना है। हम मूव कर गए हैं 308 के साथ। ये 308 का एक डायग्राम आपके सामने पड़ा हुआ है और बड़ा ही एक्सट्रीमली बड़ा ही पॉपुलर राइफल कैलिबर है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2 to 3 के साथ, ये बड़ा होता है साइज में, ठीक है। 308 जाहिर सी बात है वो 0.223 ऑफ एन इंच है, ये 0.308 ऑफ एन इंच है इसका जो साइज है। तो ये इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो बड़ा भी होता है और इसके अंदर बारूद भी ज्यादा होता है। एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉपुलैरिटी है राइफल एंथुजियास्ट के। अगर आप उनका रिव्यू देखें मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके उनके लिए, तो पूरी दुनिया में बड़ा जबरदस्त ये एक स्पोर्टिंग प्रिसिशन शूटिंग राउंड है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप एक ब्रीफ कंपैरिजन आपको मैं दूंगा। 0.22 LR ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, ये अफोर्डेबल रिक्रिएशनल शूटिंग है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 9mm पे। ये 9mm आपके पास पड़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडगन कैलिबर्स, बिकॉज ये शूटिंग और प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत अच्छा है और अवेलेबिलिटी के लिए। 30 बोर ये जिस तरह के आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी बहुत बड़ी तारीख है, लॉन्ग हिस्ट्री है और सबसे ज्यादा जानने वाला, जाना माना और इस्तेमाल होने वाला कैलिबर है और सेल होने वाला कैलिबर है पाकिस्तान में। तो ये तीनों थे। 2 to 3 के बारे में भी आपको बताया, उसका डायग्राम, वो भी पूरी दुनिया में एक राइफल का बड़ा मारूफ और अच्छा कंफर्टेबल टू शूट कैलिबर है, सूटेबल है डेवलपिंग राइफल मार्क्समैनशिप स्किल्स जिसको आप कहते हैं शुरुआत के लिए। 308 जो है उसकी वर्सेटैलिटी, उसकी एक्यूरेसी और पॉपुलैरिटी राइफल के जो शौकीन हैं उनके लिए, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो 308 का कैलिबर G3 में इस्तेमाल करती हैं। उसकी एक अलग से वीडियो मैंने आपको बताई भी थी। तो हर कैलिबर जो है ना उसका एक डिफरेंट मकसद होता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है चूज करने से पहले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये आज की इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। हमने मुख्तलिफ कैलिबर्स के ऊपर बात की। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर जितना बड़ा कैलिबर हो उतनी ज्यादा शूटिंग अच्छी होगी या एक्यूरेट होगी। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी शूटिंग स्किल्स के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो जो सा भी आप कैलिबर अपने पास रखना चाहते हैं, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, आप बआसानी उसके साथ अच्छी तरह से शूट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसके फंडामेंटल्स और उसके प्रिंसिपल्स और कैसे शूट करना है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता हो। हमेशा जिस तरह मैं जाने से पहले कहता हूं, आपने अपने पास गैर कानूनी असलहा बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। हवाई फायरिंग से परहेज करें, लाइसेंस्ड वेपन्स आपके पास होने चाहिए। Wait for my next video. So until then, all of you take good care of yourselves with loads and loads of love from Harun, Guns and Food.